Hello, good afternoon, everybody. Hope you all are good and wishing you all a very Makar Sankranti, a very happy Makar Sankranti, happy Pongal to all those who celebrate Pongal. Good afternoon. So, I hope you all are good today. And thank you for joining on Sunday as well because we want the sessions to happen every day. So, we are going to continue the sessions without having any break. So that you guys are in touch and you do not leave the flow. We want it to be in flow, and then you are aware that every day is a class. So you do some preparation, you study after the class and come up with questions. So we are going to have the classes every day. All right. So until and unless there is some emergency which is not avoidable, so I plan to take your classes every day. All right, people. So the time is started for the class. I will just wait for 2 minutes and then we start the class. Yes, Vikrant. This is the live classes. So all right, guys. So this is the live classes. As I said, you all are entitled for the free live classes. Okay. Yeah. So in a minute's time, I start the class. So in that time, if you have any questions, you can ask me, and I'll be happy to answer. All right. I'll do a quick recap of what we did yesterday before I start the class today. All right, so that and I just request the host to kindly make me co-host so that I can also share my screen. I have to present, so kindly make me a whole co-host. All right, thank you for making me co-host. Now let me. I'm able to share the screen, guys. So I will share the screen. All right. Yeah. Okay. So people are joining. So let them join. We just start our class because I want to respect the time that you have all the ones that has joined on time. So let's start. All right. So this is a 10-day class, like I already said. So we are going to cover the entire manual testing course as much as possible. We are going to cover the introduction part of each and every module or every feature or every subject. We are going to cover the introduction part of that, and we started yesterday. So we covered introduction to software testing, yes, testing principles and skills for testing. We covered these three parts yesterday, if you remember. Can anyone quickly type the testing principles, the seven testing principles that we learned yesterday, one after the other? Do not say like one and then enter, one and then enter. Just type all seven and then press enter. So I just want to see if you guys remember the seven testing principles that we spoke about yesterday. I like I said, it has to be an interactive class wherein I'm going to ask questions and you should be able to answer. Then there's no point in I explaining you and you just coming the class and then just forgetting it, right? So yeah, to show the presence of defect, that's correct. But I just want all these seven principles in one message. If anybody can type that.
Correct. Testing shows the presence of defect. Yes. Exhaustive testing is not possible. Yes, you are right. But then, like I said, I want all the messages, all these 7 testing principles in one message, guys. Just remember, try to remember all the 7 testing principles quickly, and just quickly type it, and then we can just recall it and then move on to the next SDLC and so on. Yeah, that's the only one principle. The people who are typing in is just the one. We want all the 7 principles, isn't it? Yes, pesticide paradox, correct. You're right. But then we want all the seven principles at one message if possible. Very good, Nikhil. Yes, this is what I wanted. I will just repeat for the for everybody. Testing shows the presence of defect, right? Exhaustive testing is not possible. Early testing, defect clustering, pesticide paradox, testing is context dependent, and absence of error fallacy. Perfect. Yes, guys. Yes. So that is it. And I am not going to go in and understand the meaning of all this. 80-20 Pareto principle is the defect clustering, correct, Justin? That is right. And guys, I'm not going to go and explain you again the meaning, because we had a very much detailed understanding of all those 7 principles, and we move forward. Yes, Sohail, that's correct. You're also correct. So thank you guys for replying. I see that you all are in touch, and just be in touch. Keep on remembering things. It's not that आज मैं आगे का पढ़ाऊं और आप कल पीछे का भूल जाएं. ठीक है, हमें क्या करना है, हमें पीछे का साथ साथ रिवीजन करते जाना है, क्योंकि समझ तो आपको आ चुका है. ठीक है, आप एक बार देखेंगे तो आपको याद रहेगा, क्योंकि आपको समझ आ चुका है कि कौन सी चीज क्या बोलती है, वो आपको डेफिनेशन सब याद है. हमें सिर्फ क्या करना है, हमें थोड़ा सा रिवीजन करना है. ठीक है, रिवीजन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तो हम वो करेंगे. उससे पहले आई जस्ट टेक 2 क्वेश्चन. सो समवन आस्क्ड मी, कैन वी गेट अ रिकॉर्डिंग ऑफ द सेशंस? यस, यू कैन गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ द सेशन. आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वो हमारे स्टोर पर अवेलेबल है. मैं स्टोर की लिंक कल पेस्ट करने वाली हूँ सबके लिए. सो प्लीज अटेंड द क्लास. मैं स्टोर की लिंक जो है यहाँ पे डालूंगी, एंड देन यू कैन गो टू द स्टोर एंड गेट द रिकॉर्डिंग, गेट ऑल द नोट्स. जैसे जैसे क्लासेस होते हैं ना, वहाँ वैसे वैसे हम हर दिन उस पर अपलोड करते हैं अपने नोट्स. तो आप वहां से नोट्स ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं उस नोट को, और वो एक्सेस स्टोर का एक्सेस लेके आप नोट्स को पढ़ सकते हैं. और पढ़ने के बाद आप अगर डे 5 के क्लास में है और आपको कोई क्वेश्चन डे 1 के नोट्स पढ़ने के बाद है, तब भी आप पूछ सकते हैं. ठीक है. सर्टिफिकेट, यस चंद्रवीर, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो भी आपको स्टोर से ही मिलेगा. ठीक है, हमारा एक स्टोर है जहां पर आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जहां पर आप नोट्स ले सकते हैं, जहां पर आप रिकॉर्डिंग ले सकते हैं. तो स्टोर्स पे हमने 3 चीजें डाल रखी हैं: नोट्स, इंटरव्यू के क्वेश्चंस, सर्टिफिकेट और रिकॉर्डिंग. All right. So guys, thank you for answering everybody, and the ones who has just joined or are joining in, I welcome you to the second day of the software testing class. Today we are going to move forward and learn new things. Okay. So if I'm sure you guys can see my screen, just quickly, I would be happy if just couple of people just quickly reply to me that they are able to see the screen. So I quickly move forward. Yes. Thank you, Anuradha. All right. So yeah, so let's begin. So we just started with this introduction to software testing, testing principles, skills for testing, and then we today, like I said, whatever I complete, I try to mark that in green. So we completed this. Now we are going to move on to the software development life cycle, software testing life cycle, types of software testing. Let's see हम कितना complete कर पाते हैं इतने में. All right. ओके, सो दिस इज द डे 2. जैसे मैंने बताया कि मैं अपना ऐसे बना के रखी रहती हूँ, डे 1 डे 2. सो डे 2 में हम पढ़ने वाले हैं SDLC, STLC और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग देखेंगे, क्योंकि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग थोड़ा सा लंबा टॉपिक है. इफ पॉसिबल अगर हम आधा भी कवर कर पाए तो हम आज आधा कवर करेंगे, नहीं तो हम कल कवर करेंगे. ठीक है. अब हम मूव करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. सॉफ्टवेयर अभी तक आपको समझ में आ गया है, डेवलपमेंट मतलब किसी चीज को बनाना. ठीक है, उसको डेवलपमेंट बोलते हैं. अब लाइफ साइकिल, सो एवरीथिंग हैज अ लाइफ साइकिल. एवरीथिंग इज अ लाइफ साइकिल. अब आप ह्यूमंस का ही अगर लेते हैं एग्जाम्पल, सो वी वर born, then we were kids, then we were adults, then we become old, and then we die, right? So there is a life cycle. Life cycle मतलब stages.
फेजेस, मतलब पहले एक चीज हुई, फिर दूसरी। पौधों का भी हम ले सकते हैं कि हम पहले बीज डालते हैं, सीड होता है, फिर वो प्लांट्स बनते हैं, फिर वो सैपलिंग्स बनते हैं, फिर वो प्लांट्स बनते हैं, फिर वो ट्रीज बनते हैं। ठीक है, तो दैट इज अ लाइफ साइकिल फॉर एवरीथिंग। सो ऐसे ही सॉफ्टवेयर जब बनता है तो उसका लाइफ साइकिल क्या होता है, ठीक है, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, so there is a 6 phases of the software development life cycle: analysis, design, development, testing, deployment and maintenance। और ये ना, ये जो है ना, ये इसी ऑर्डर में होता है। मतलब हम एनालिसिस पहले करेंगे, फिर हम डिजाइन करेंगे, उसके बाद डेवलपमेंट, फिर टेस्टिंग, फिर डिप्लॉयमेंट और फिर मेंटेनेंस। हम ऐसे ही उसको सारे फेजेस में करते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे पास आते जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले ना, जो ये नीचे आप देख रहे हैं ना, तो ये क्या रहता है ना, कब ये ना, ये उन जो जो लोग रिस्पॉन्सिबल है, द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालिसिस, द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग, और जो अपना इनपुट देते हैं या फीडबैक देते हैं, वो हमने नीचे लिख के रखा हुआ है। ठीक है, पहला फेज होता है एनालिसिस फेज। ठीक है, एनालिसिस में क्या होता है गाइस, सो सपोज एक सॉफ्टवेयर का आइडिया आपके पास आया है। ठीक है, एनालिसिस मींस क्या होता है ना, मैं थोड़ा सा एनालिसिस के भी पहले पीछे जाऊंगी। एनालिसिस के भी ना थोड़ा पहले जाते हैं कि एनालिसिस कहाँ से आता है। क्या होता है ना, जब भी हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है, देन वी ट्राई टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे कि मैं एक नॉर्मल, मैं एक नॉर्मल, आप लोग सब अपने अपने डे टू डे के बारे में सोचिए कि कभी भी जैसे आपके पास कुछ प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम आपको महीनों महीनों तक परेशान कर रही है, तब आपको कभी लगता है कि ठीक है, आज आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा। जब बहुत दिन तक ये ठीक नहीं होता है या फिर मतलब कुछ नहीं हो पाता, तो आपको क्या लगता है कि अब तो यार मुझे इसका सोल्यूशन ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमें कभी क्या लगता है, चोट, कहीं पेन होता है या हमें कभी चोट लगता है, तो हम 1 या 2 दिन रुकते हैं, फिर 1 2 दिन रुकते हैं, फिर हम तीसरे दिन कुछ नहीं सोल्यूशन होता, ठीक नहीं होता, तो हम तीसरे दिन डॉक्टर के पास जाते ही है ना। वैसे ही जब क्या होता है ना, कुछ हाँ बेटा, मैं चिल visible. I was just disconnected. There was the Wi-Fi problem. We just got disconnected. So this is an example what we were learning. We were learning the life cycle, right? We were learning the life cycle. So what happened?
what happened was that I was just explaining you guys the analysis के पहले का प्रोसेस मैं आपको समझा रही थी कि जब प्रॉब्लम्स बहुत होता है तो आप क्या करते हैं, एक सोल्यूशन खोजते हैं। तो जैसे आज मेरा आपके साथ क्लास लेते लेते नेट डिस्कनेक्ट हो गया। अगर ये रोज हो जाएगा, मान लीजिए अगर ये रोज होगा, तो मेरे दिमाग में क्या लगेगा मुझे, दैट आई नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन। इधर आई नीड टू चेंज माय ब्रॉडबैंड, मेरे वाईफाई का जो कनेक्शन है, उसका जो जहां से मैंने कनेक्शन लिया है, सर्विस प्रोवाइडर है, मैं उसे चेंज कर लूं, राइट? So this is where an idea comes into your mind, that I need to now find a solution. So I was giving an example of IRCTC. I'm just sharing the screen so that we just look at what we are going to understand. So you remember, right, when 20 years back we were not able to book the tickets, we used to go to the counter, and then we used to be in the line, and then sometimes waiting आया है, waiting confirm नहीं हुआ, again you go and check it for the people, कि क्या हुआ, मेरा waiting वाला जो ticket है वो convert हुआ है क्या, उस पे हमें रिजर्वेशन में कन्वर्ट हुआ है नहीं हुआ। सो दैट वाज अ वेरी टीडियस एंड अ कम्पल्सम प्रोसेस, और एक डर लगता था कि यार एक एक दिन भर का एक्टिविटी रहता था। आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे कि मुझे आज टिकट बुक करने जाना है, मुझे आज टिकट बुक करने जाना है। फिर कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि द पीपल, आईआरसीटीसी प्रोबेबली, आईआरसीटीसी इंडियन रेलवेज के दिमाग में आया कि व्हाई डोंट वी ऑटोमेट इट, सो व्हाई डोंट वी ऑटोमेट दैट। तो जब ऑटोमेट करने की बात आती है, जब ऑटोमेट करने का आया आइडिया, तब हमें क्या लगा कि हम उसको एक काम करते हैं, ऑटोमेट कर देते हैं। ऑटोमेशन करने के लिए, अब ऑटोमेशन करना है आईआरसीटीसी को, तब हमें क्या क्या चाहिए होगा, ठीक है? उस वाले फेजेस को एकदम स्टार्टिंग फेज बोलते हैं, दैट एन आइडिया हैज कम, a problem has come and a solution is there. Now how do you implement the solution? ठीक है, आपके पास सोल्यूशन आ गया कि मुझे एक सोल्यूशन मिल गया, ऑटोमेट करना है। इज दैट द एंड? नो, दैट इज नॉट द एंड, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ एन इवन मोर बिगर चैलेंज। वो एक बिगिनिंग है, आपके पास एक बड़ी चैलेंज की, कि हमें सोल्यूशन मिल गया, बट हम उस सोल्यूशन को, जैसा हमारे दिमाग में जो सोल्यूशन घुसा है, उसको हम ऑन पेपर कैसे उतारे, ठीक है? कि हम उसको कैसे कैसे उसको कैसे हम उसको ऑन पेपर उतारें, ठीक है? अब उसके बाद हम उसके ऑन पेपर तो दिमाग में तो है, अब उस ऑन पेपर को उतारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ना बहुत सारी चीजों की एनालिसिस करनी पड़ेगी। गाइस, आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन, आई होप यू गाइस कैन सी द स्क्रीन, राइट? यस, वेरी गुड। सो एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है? तो एनालिसिस की जो प्रोसेस होती है ना, उसमें क्या रहता है कि आपको ना डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है? अब वो डॉक्यूमेंट्स कौन बनाएगा, या तो वो जो डॉक्यूमेंट्स बनाता है ना, हम उसको बोलते हैं प्रोडक्ट ओनर। मतलब जो जो जिसके दिमाग में आइडिया आया हो, या फिर जो ऐसे ऐसे इस पे काम किया हो कि कैसे किसी के आइडिया को डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करे, कि ओके प्रॉब्लम ये है, इसके ये सोल्यूशंस थे, पहला प्रॉब्लम ये था, अब इसका सोल्यूशन ये है, उससे बेनिफिट्स क्या क्या होगा हमें, ठीक है? बेनिफिट तो के बिना हम कैसे काम करेंगे ना, बेनिफिट नहीं होगा तो हमें कुछ करने की ही जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर कहीं कुछ वैल्यू नहीं ऐड होगा किसी चीज में, तो हमें क्यों बनाना है वो चीज? तो बेनिफिट्स लिखेंगे। तो ये सारा लिखते 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 बहुत सारा टू एंड फ्रो चलेगा, कि वो 5-10 लोगों की टीम होगी मान लो, ठीक है? तो वो 5-2 लोगों ने बनाया, फिर वो प्रेजेंट करेंगे बाकी लोगों की, सी वी हैव मेड दिस, डू यू थिंक इट इज ओके, फीडबैक सेशंस बोलते हैं उसको, ठीक है? तो यू हैव दैट फीडबैक, एंड देन थिंग्स कीप ऑन गेटिंग बेटर, रिफाइन होते जाएगा, ठीक है? तो वो थिंग्स कीप ऑन गेटिंग बेटर, और जब एक फाइनली वो एक रेडी हो गया, दैट एवरीबडी हैज साइंड ऑफ, उसको बोलते हैं दैट एवरीबडी हैज साइंड ऑफ। मतलब जितने लोग इन्वॉल्व थे ना उस प्रोसेस में, दैट दे हैव साइंड ऑफ, एंड देन दैट बिकम्स अ बीआरडी। एनालिसिस का जो आउटपुट रहता है ना, वो एक कन्वर्ट होता है बीआरडी में। बीआरडी का मतलब होता है बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। गाइस, ये टेस्टिंग के लिए बाइबल है, ठीक है? ये टेस्टिंग के लिए ना बाइबल है। बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हमारा टेस्टिंग का पूरा बेस बीआरडी पे बेस्ड है, ठीक है? So this is a very key document, and going forward keep this in mind that I'm going to talk about BRD many times I'm going to talk about BRD. So this is business requirement document, आप इसका full form समझ लीजिए, that this is a BRD, right? So हम उस BRD को क्या करते हैं, रेफर करते हैं। अब एक BRD बन गया, BRD में क्या रहेगा कि this is the problem that people were not able to see the people was not able to book the ticket efficiently. There were a lot of problems, a lot of time taking activities. Whether now the business has proposed a solution, and the solution is
to build an irctc.co.in and build a नाम नहीं भी लिखा तो to build an application or to build a website which provides the following features, which will provide you to book a ticket, which will provide you the facility to cancel the ticket, which will provide you the facility to check your PNR, which will provide you the facility to print the ticket and so on, which will provide you the facility to email the ticket. अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं तो आप यहाँ से टिकट बुक करिए और आप उस टिकट को ईमेल कर दीजिए. Yes, so this is all about BRD. अब हमारे पास BRD बन गए, दैट इज द फर्स्ट फेज. अब BRD बनने के बाद क्या हुआ कि अब देखो, इफ यू गाइस अंडरस्टैंड इट विद द रियल वर्ल्ड, मैं एक रियल वर्ल्ड का एग्जांपल देना चाहती हूँ, बिकॉज व्हेन यू गेट एन एग्जांपल ऑफ रियल वर्ल्ड ना, वो आपके दिमाग में रह जाता है. सपोज if all of the people who are attending, all the 200 guys who are attending my session today, so you all guys have either have their own houses, और आपको एटलीस्ट हाउस बनाने की प्रोसेस तो पता होगी. करेक्ट. सो व्हेन यू हैव दैट हाउस, सो आपके पास एक दिमाग में तो रहता है ना कि मम कि मुझे ना, मतलब मेरे पास जमीन है एंड नाउ आई वांट टू बिल्ड अ हाउस. तो आपके पास एक हाई लेवल का आइडिया रहता है कि मुझे 3 BHK बनाना है, मुझे 2 BHK बनाना है, मुझे 1 BHK बनाना है, मुझे डुप्लेक्स बनाना है, मुझे 3 फ्लोर स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, मुझे नीचे में पार्किंग खाली छोड़ना है. यू हैव दैट एन आइडिया. ठीक है, तो आपके पास एक आइडिया है, आप कस्टमर है. आप कौन है? आप कस्टमर है. आपके पास एक आइडिया है कि मुझे ये मेरे पास मुझे ये है, मुझे ये ऐसा ऐसा है, मैंने ये सब मुझे चाहिए. आप जाएंगे बिल्डर के पास, जाएंगे या किसी के पास भी जाएंगे जो आपका घर बनाएगा, आप उसको बोलेंगे कि मुझे ये चाहिए, अब तुम देख लो कैसे बनेगा. वो जाएगा कि चलिए सर आपकी साइट पे मुझे देखना है. फिर वो आप उसको साइट पे लेके जाएंगे. वो उस साइट को देखेगा, वो ऊपर नीचे देखेगा, वो बोलेगा आपने क्या बोला था सर, आपको क्या क्या चाहिए. आप बोलेंगे कि मुझे देखो, मुझे ना मेरी मेरी 2000 की जगह है, तो या मेरी 500 स्क्वायर फुट की जगह है, जितनी भी जगह है, 1 गुंठा की जगह है, तो ना मुझे इस पे एक नीचे में एक बड़ा रूम चाहिए, उसके ऊपर एक बेडरूम चाहिए, एंड आप अपनी बताएंगे सारा कुछ. तो वो क्या बोलेगा कि नहीं सर इतना में तो नहीं हो पाएगा, हम ना ऐसे ऐसे कर सकते हैं. वो अपने आइडियाज देगा, बिकॉज उसका वो काम है, ही इज अ प्रोफेशनल इन दैट एरिया. तो वो आपको आइडियाज देगा, फिर आप अग्री कर लेंगे, आप दोनों के बीच डिस्कशन होगा, फिर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आप एग्री कर लेंगे कि ओके ठीक है, हम इस पे, आप थोड़ा एडजस्ट करेंगे, वो थोड़ा एडजस्ट करेंगे, और आपने अग्री कर लिया कि अब ऐसे ही घर बनाते हैं. तो ये वाली फेज हो गई एनालिसिस की फेज कंप्लीट, जहां पर आपके पास एक आउटपुट आ गया है कि वी आर रेडी नाउ विथ a document which will talk about what is needs to be developed. What BRD talks about? It talks about what needs to be developed. ठीक है. अब उसके बाद अगर घर की बात करें, तो एक आर्किटेक्चर एक 3D डिजाइन बना के आपको देगा. देगा कि नहीं देगा, कि सर ये देखिए ये ना 3D डिजाइन है और आपका घर ऐसा लगेगा. उसको बोलते हैं डिजाइनिंग. सिमिलरली इन इन सॉफ्टवेयर वी हैव आर्किटेक्ट्स और वी हैव यूआई डिजाइनर. ठीक है, यूजर इंटरफेस बोलते हैं उसको. तो वो क्या करते हैं ना, वो डिजाइन बनाते हैं. डिजाइन मतलब वो फ्लो बनाएंगे कि कैसा घर दिखना चाहिए, या फॉर दैट मैटर कैसा वेबसाइट दिखेगा. वो ना पेंसिल या वो टूल्स यूज करके एक 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 डायग्राम टाइप का बनाएंगे, एक वर्चुअल वर्चुअल डायग्राम टाइप का, कि ओके अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा, उसके बाद आप यहाँ जा सकते हैं, आप यहाँ जा सकते हैं. एक लेमन टाइप का ना पेज पेज डेवलप करेंगे. ठीक है, दैट इज कॉल्ड ए डिजाइनिंग फेज. सेकंड फेज अपना कौन सा है? डिजाइनिंग फेज. उस फेज में हमारा क्या, उस फेज में भी एक डॉक्यूमेंट बन के निकलता है. उस फेज में हम क्या बोलते हैं, उस फेज को हम क्या बोलते हैं कि एसआरएस बोलते हैं. उस फेज को, जो डॉक्यूमेंट जो जो आउटपुट डिजाइन फेज से निकलता है ना, उसे हम बोलते हैं एसआरएस, और उसका नाम रहता है सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन मतलब उसमें सारा डिजाइनिंग वाला पार्ट रहेगा कि आप ये वाला हार्डवेयर यूज करिए, आप ये वाला सॉफ्टवेयर यूज करिए, उसकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए, उसका रैम इतना होना चाहिए, उसमें ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा आईआरसीटीसी है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज होता है, तो इसमें यूजर्स बहुत रहने वाले हैं, तो हमें इसकी हाई हाई परफॉर्मिंग लॉजिस्टिक्स चाहिए. तो ये सारा कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन पे मेंशन किया रहेगा. अब डिजाइन का फेज कंप्लीट. ठीक है, अब डिजाइन फेज कंप्लीट होने के बाद गाइस, दो फेजेस हमारे पास कंप्लीट हो गई, और दोनों फेज के बाद हमारे पास दो दो डॉक्यूमेंट आ गए. एक डॉक्यूमेंट हमारे पास आ गया बीआरडी, सेकंड डॉक्यूमेंट हमारे पास आ गया एसआरएस. अब ये दोनों डॉक्यूमेंट ना डेवलपमेंट टीम क्या करेगी? डेवलपमेंट टीम कौन होती है? जो कि डेवलप करती है. ठीक है, जो कि डेवलप मतलब कि डेवलपर्स या फिर द पीपल हु कोड.
जो कोडिंग करते हैं, ठीक है, जो लैंग्वेज में किसी सी सी प्लस प्लस बोलो, जावा बोलो, ठीक है, वो जिस पे कोडिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट टीम। एक फ्रंट एंड डेवलपर रहेगा, एक बैक एंड डेवलपर रहेगा। बैक एंड डेवलपर डेटा से रिलेटेड डेवलप चीजें डेवलप करेगा, फ्रंट एंड डेवलपर वो यूआई पार्ट डेवलप करेगा, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगी कि आप वो कैसे डेवलप करेगा, तो वो क्या करेगा, एक बीआरडी मिल गया है, एक एसआरएस मिल गया है, इन दोनों को स्टडी करेगा, अपने क्वेश्चंस पूछेगा, मीटिंग्स रखेगा, सारे डाउट्स क्लियर करेगा और रियल में एक एप्लीकेशन डेवलप करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, रियल में क्या करना स्टार्ट करेगा, एप्लीकेशन को डेवलप करना स्टार्ट करेगा। अब जब वो एप्लीकेशन डेवलप है, रियल में वही काम होता है, वहां पर उसने उसने वो सारा डेवलप किया, और मान लो उसने डेवलप कर दिया 2 महीने में आईआरसीटीसी का पूरा वेबसाइट, जहां की वो लॉगिन से लेकर पूरा का पूरा एंड तक, प्रिंटिंग तक का प्रोसेस उसने कंप्लीट कर दिया। अब उसने क्या बोला कि लो ये तो हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा। अब उसने बोला कि अब ये रेडी है, अब मैं इसको टेस्टिंग को दे देता हूँ, और टेस्टिंग को देने के बाद अब मेरा काम खत्म। अब टेस्टिंग की टीम बैठ के देखे कि ये सही है कि नहीं सही है। अब टेस्टिंग टीम मतलब हम, टेस्टिंग मतलब हम क्या करेंगे उसको, हम डेवलपर ने जो हमें बना के दिया है हम उस पे रिलाई नहीं करेंगे। We are not going to rely on what developer has provided us. We are going to rely on what? We are going to rely on BRD and SRS. हम जब तक ना ये कैसे, जैसे जैसे पता है, याद है तुम्हें एक टेस्टिंग का एक प्रिंसिपल था, अर्ली टेस्टिंग। तो जब तक ना डेवलपमेंट टीम उसको डेवलप कर रही है, बीआरडी और एसआरएस तो रेडी है, पहले से ही रेडी है ना, तो हम भी अपनी स्टडी स्टार्ट कर देंगे, हम बैठे नहीं रहेंगे। हम ये जो 3 फेज है ना गाइस, इसके कंप्लीट होने तक हम बैठे नहीं रहेंगे। We also have to do our analysis. हम क्या करेंगे ना, हम बीआरडी, हम एसआरएस पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, हम क्वेश्चंस रेज करना स्टार्ट कर देंगे। दिस इज कॉल्ड अर्ली टेस्टिंग, कि you are so much involved into it. This process is called early testing. If you guys remember the principle, it was the third principle of our testing. So we will start that process, and we will now be ready। जब तक डेवलपर अपना एप्लीकेशन बिल्ड करके हमें दे रहा है, तब तक हम भी रेडी हैं समझ के कि कैसा तुम्हारा एप्लीकेशन काम करना चाहिए। अब वो टेस्टिंग के पास आया, टेस्टिंग टीम ने टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया, ये काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, ऐसा है वैसा है, ये सब हो गया, टेस्टिंग कंप्लीट हो गई। हमने बोला कि जैसा एप्लीकेशन चाहिए था, इट इज व्हाट, इट इज फिट फॉर पर्पस, इट इज फिट फॉर रिक्वायरमेंट। अगर आईआरसीटीसी, अगर हम आईआरसीटीसी बनाते और ये लोग ये प्रमोट करते आईआरसीटीसी का कि इसमें टिकट बुक होती है, लेकिन लेकिन अगर कुछ ऐसा एप्लीकेशन बनता कि जिसमें से सिर्फ टोकन ही निकलता और वो टोकन लेके हमें काउंटर पर ही जाना पड़ता, तो दैट वाज नॉट फिट फॉर पर्पस। मतलब तुम बोल रहे हो कि वो टिकट बुक करेगा, लेकिन वो तो हाफ ही कर रहा है। तुम उसमें हाफ प्रोसेस की हो कि तुम बोल दिए हो कि मैंने फॉर्म भर दिया है, सब कुछ कर दिया है, लेकिन मुझे ओरिजिनल टिकट क्या करने की कैसे मिलेगी, एक टोकन आईडी लेके काउंटर पर ही जाना पड़ेगा। सो दैट इज नॉट एक्चुअली फिट फॉर यूज। ठीक है, अब उसके बाद क्या रहेगा, अब मैं उसके बाद क्या करूंगी कि टेस्टिंग हो गई, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, डिप्लॉयमेंट करेंगे। ठीक है, डिप्लॉयमेंट का क्या काम रहता है कि अब टेस्टिंग बन चुकी है, अब मेरा एनालिसिस हो गया, डिजाइन हो गया, डेवलप हो गया, टेस्ट भी हो गया। अब सिर्फ टेस्ट करके मैं अपने पास तो नहीं रखी रहूंगी ना, मुझे उसको रिलीज करना होगा, लाइव करना होगा। ठीक है, उसको दुनिया के लिए, जिस जो दुनिया बोलो या जो यूजर्स हैं उनके यूज के लिए ना हमें उसे लाइव करना पड़ेगा। उसको प्रोडक्शन बोलते हैं, उसको प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। कि मतलब हमने अपना होमवर्क कर लिया, इतनी मेहनत करी, 6 महीने तक हम उसी प्रोसेस में लगे रहे, एनालिसिस, प्रोडक्ट ओनर एनालिसिस करता रहा, आर्किटेक्ट डिजाइन किया, डेवलपर ने डेवलप किया, टेस्टिंग टीम ने टेस्टिंग किया। किस लिए किया, बिकॉज वी वांटेड टू डिप्लॉय इट ऑन प्रोडक्शन। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, वी वांट टू डिप्लॉय इट इन प्रोडक्शन। अब हमने उसको लोगों के लिए क्या कर दिया, डिप्लॉय कर दिया। अब लोगों के लिए हमने डिप्लॉय कर दिया, लोग उसको यूज करने लग गए। ठीक है, अब जब लोग उसको यूज करने लग गए तो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड रिक्वायर्स मेंटेनेंस। यू अग्री, agree not agree, we require maintenance, everything requires maintenance. So now what happens is, जब हम IRCTC यूज कर रहे हैं, मान लीजिए आपके टिकट कैंसिल कैंसिल कर दिया आपने, आपका पैसा नहीं आया है, तब आप क्या करेंगे, आप उनके कस्टमर केयर पे फोन करेंगे और बोलेंगे कि अरे मैंने तो टिकट बुक कर दिया, आपने पैसा आया नहीं है। तो वो बोलेंगे मैम 3 to 5 वर्किंग डेज वेट करिए, आ जाएगा आपका पैसा, नहीं आएगा तो फिर आप हमें कॉन्टेक्ट। तो क्या रहता है ना, सपोर्ट,
इसको हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट. दिस इज कॉल्ड अ सपोर्ट एक्टिविटी. और सपोर्ट प्लस मेंटेनेंस, मतलब वो रोज देखेगा कि आईआरसीटीसी चल तो रहा है, आईआरसीटीसी में 2 लाख यूजर्स लॉग इन किए हैं, ये कहीं बैठ तो नहीं गया, इसका सर्वर डाउन तो नहीं है. मतलब एक मेंटेनेंस वाली एक्टिविटी चला के एक टीम बैठेगी जो कि एवरी डे दे आर गोइंग टू मेंटेन इट. दे आर गोइंग टू चेक कि सारे चेक सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, मतलब वो अप एंड रनिंग है कि नहीं. मेंटेनेंस और प्लस सपोर्ट. सपोर्ट मतलब यूजर को कुछ अगर प्रॉब्लम आ गई तो हम उसका सपोर्ट देने वाले हैं. वी आर देयर टू गिव यू सपोर्ट. Plus, we are also there to ensure what is very important. We are also there to ensure that the website is always up and running. ये काम होता है maintenance का. ठीक है. So this is called the software development life cycle. Analysis, design, development, testing, deployment and maintenance. There are 6 phases. और मैं तुमको और एक बात बताऊं, ये हर एक फेज का ना खुद का अपना एक लाइफ साइकिल होता है. मतलब डेवलपमेंट के अंदर उनका खुद का एक लाइफ साइकिल होगा, टेस्टिंग के अंदर खुद का एक लाइफ साइकिल होगा, डिप्लॉयमेंट के अंदर खुद का एक लाइफ साइकिल होगा. हम हमारा चूंकि टेस्टिंग है इसीलिए हम एक एक चीज टेस्टिंग का पढ़ने वाले हैं और हम टेस्टिंग की लाइफ साइकिल एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. हम ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का हाई लेवल पे एक एक फेजेस पढ़ चुके हैं, लेकिन हर एक का अपना उसके अंदर लाइफ साइकिल होता है. ठीक है. ठीक है. अब मैं 2 मिनट क्वेश्चंस देखती हूँ कि पीपल हैव आस्क्ड एनी क्वेश्चंस. Just let me just check. And if you guys have understood, not understood, please type in and let me know if you have understood and the speed is okay. And what you want me to ask, what you, if you have any questions. Okay. Okay, understood. Yes, thank you, Anuradha. Thank you guys who are saying we have understood, ma'am. SRS is after analysis. Yes, SRS is after analysis. SRS is a software requirement specification document that will talk about requirements. So the people who are asking DevOps is called as continuous deployment, continuous testing. It's altogether a new process, a new methodology that will come after testing, that आप deploy कर रहे हैं, test कर रहे हैं, deploy कर रहे हैं, test कर रहे हैं, ऐसा. That is the concept of DevOps. And there are roles, जैसे हम testers होते हैं, वैसे there are DevOps engineers. ठीक है. उनका अपना एक रोल होता है. जैसे डेवलपर का क्या रोल है कि वो डेवलप करेगा, कोड करेगा, एप्लीकेशन बिल्ड करेगा. टेस्टर का काम क्या है कि टेस्टर ये सब कुछ काम करेगा, टेस्टिंग करेगा. वैसे डेवऑप्स की टीम क्या करेगी, जो रेडी है, जो मार्केट में जाने के लिए रेडी है ना, उसको कंटिन्यूअसली डिप्लॉय करेगा, टेस्ट करेगा, कंटिन्यूअसली डिप्लॉय टेस्टिंग करेगा. दैट इज कॉल्ड डेवऑप्स. Who will prepare BRD is for analysis? Yes. Who will prepare SRS documents? So Pranit, Pratik, the architecture. There is a software architect. जैसे roles है ना, software developing a software is not a one man job. It is a team. It is a teamwork. Yeah, तो SRS is generally developed by the architect, software architect जो रहते हैं वो develop करते हैं, या किसी किसी केस में business analyst भी develop कर सकते हैं. BRD is not after analysis. BRD is after analysis, Nikhil. BRD is business requirement document. आप जब analysis के phase में हैं तो वो analysis का output होता है, that is called a BRD. ठीक है. And that BRD is something which is a key for a tester. Not even for a tester, for a developer also. But tester के लिए तो एकदम ही जरूरी चीज है वो. उसके लिए वो base है. वो अपनी testing वहीं से शुरू करता है. ठीक है. Ma'am, BRD document, can we see?
Okay, so guys, so that all looking into the BRD, looking to BRD document and all that, that is a part of our that is a part of our full QA course, जहाँ पे हमारे पास एक BRD होता है और आपको एक सिस्टम दिया जाता है, आप उस BRD को पढ़ के कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं टेस्टिंग में, वो हम उसमें वो सिखाते हैं. दैट इज अ लाइव टेस्टिंग क्लास वेर इन you go inside that, read the BRD, take out the BRD समझिए और फिर उससे आप क्या समझ के टेस्टिंग कैसे करते हैं वो रिलेशन वो दैट इज अ कोर्स which is the course that I was talking about yesterday. It is a 1 month course which talks about live BRD understanding and looking into the BRD and converting that BRD into the testing. Interviewers ask about SDLC, then just we have to explain the phases or give you just have to explain the phases, Vinod. You just have to, if the interviewer goes into the detail, वो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, कभी कभी क्या होता है कि उसको एक क्वेश्चन का आंसर इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा और आपने दिया और उसको लगा कि ये तो ऐसी पढ़ के आया, इसको समझ नहीं आया, इसको पढ़ के आया, तो वो क्या करेगा ना, उसके आपके अंदर और क्वेश्चन अंदर ही पूछने लगेगा. जैसे जैसे कोई क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज योर रिस्क, आपने कोई कोई तो थियोरिटिकल डेफिनेशन बोल दी, इंटरव्यूअर तुरंत समझ जाएगा कि ये बुकिश लैंग्वेज है, इसको पता नहीं है, तो फिर वो तब वो आपको इंटरोगेट करने के लिए, अच्छा तो ये बताओ, अच्छा अच्छा ऐसे होता है, फिर और बताना तो जरा. So then he goes deeper. Then he goes deeper. So if he goes deeper, then you give an example. Otherwise, just explain the output की analysis से हमें क्या मिलता है, उस design से हमें क्या मिलता है और हम उसको क्या use करते हैं और वो phases कौन है और who is the responsible person for each phase. That should be more than enough. So who maintains the software? So Ankit, there is a core team called as production support. आपने कभी सुना होगा. तो लाइक आई सेड कि पूरे की पूरी टीम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज नॉट अ वन मैन टास्क, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज अ टीम वर्क, और ये टीम वर्क से ही अच्छा सॉफ्टवेयर बनता है. किसी अकेले के उससे सॉफ्टवेयर अकेला अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं बन पाता है. सो देयर इज अ business analyst team, there is a development team, there is a testing team, there is a DevOps team, there is a production support team who is responsible for maintenance of the software. ठीक है. Now let's move forward. I will just read the process of software development life cycle, guys. I think जब आप मैंने आपको समझा दिया है तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा. I'll just read it quickly for you people. ठीक है. SDLC, आप जब जब भी SDLC बोलेंगे तो आप दिमाग में रखिएगा, that is nothing but software development life cycle. SDLC is a systematic process for building a software that ensures the quality and correctness of the software built. SDLC process aims to produce a high quality software that meets the customer expectation. और customer expectation कहाँ लिखा रहेगा? Customer expectations BRD में लिखा रहेगा. ठीक है. BRD जनरली BRD बिजनेस एनालिस्ट बनाता है, लेकिन बिजनेस एनालिस्ट को BRD बनाने के लिए इनपुट कौन देता है? कस्टमर देता है. याद है मैंने थोड़ा सा मैं एनालिसिस के पहले वाला फेज में गई थी. तो दैट इज वेयर कस्टमर बीच में आता है और वो अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करता है बिजनेस एनालिस्ट को, और बिजनेस एनालिस्ट उसको बीआरडी में कन्वर्ट करता है. द सिस्टम डेवलपमेंट शुड बी कंप्लीटेड इन द प्री डिफाइंड टाइम फ्रेम एंड कॉस्ट. ऑब्वियसली अगर आपने कमिटमेंट कर दिया है कि एक प्रोजेक्ट आज जनवरी में स्टार्ट होगा और जून में खत्म होगा, तो हमारा प्लान यही रहता है कि हम उस 6 महीने में पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर कंप्लीट करके कस्टमर को दे दें. और जितना पैसा हमको कस्टमर से एग्री किया है, कस्टमर ने बोला कि हम आपको उसके लिए 50 लाख का मेरा बजट है, आप उसमें कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. और अगर अग्री कर लेते हैं हम, अगर हम नहीं अग्री करते हैं तो ठीक है, वो बढ़ा सकता है, लेकिन एक बार हमने अग्री कर लिया है कि ओके सर, वी विल डू इट इन 6 months एंड वी विल एंड दिस विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 50 to 60 लाख, तो कस्टमर बोलेगा कि ओके, then there is a deal, एक deal sign होता है, and after that we almost try to stick to that deal. ठीक है. So the system development should be completed in the predefined time frame and cost. SDLC consists of a detailed plan which shows how to plan, build and maintain a software. Every phase of the SDLC has its own process. मैंने बोला कि हर एक phase का अपने अंदर एक नया process होगा, and deliverables that feeds into the next phase. एक फेज दूसरे फेज को लेके जाता है, एक फेज का आउटपुट दूसरे फेज के लिए इनपुट का काम करता है.
ठीक है। SDLC stands for Software Development Life Cycle and is also referred as Application Development Life Cycle. Obviously हम किसी एक एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं तो हम कभी कभी उसको एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी बोलते हैं. Now guys, I'm just moving into testing life cycle. हमारा हमारा हम किस कहाँ पर आते हैं, हम यहाँ पर आते हैं, राइट. वी आर इनटू दिस फोर्थ फेज है. तो अब हम अपने टेस्टिंग लाइफ साइकिल में आएंगे, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल. ठीक है. अब हमारा टेस्टिंग लाइफ साइकिल का फेजेस हम फटाफट देख लेते हैं और हम उसको अब समझ लेते हैं. हमारा फेज है रिक्वायरमेंट एनालिसिस. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट एनालिसिस. रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब होता है एनालिसिस ऑफ द बीआरडी. एनालिसिस ऑफ द बीआरडी मतलब हमें जो बीआरडी मिला हुआ है, हाँ, बीए से या कस्टमर से, हम उसकी एनालिसिस करते हैं. गाइस, व्हेन पीपल आस्क यू व्हाट डज एनालिसिस मीन, analysis means to read the document, to understand the document, raise the questions, and be so confident about the document that you have understood one each and every line of the document. That is called the requirement analysis. ठीक है. फर्स्ट फेज हो गया. अब सेकंड फेज मेरा क्या है, टेस्ट प्लानिंग. अब मुझे एक बात बताओ, टेस्टिंग अपने आप में बहुत बड़ा एक्टिविटी है. टेस्टिंग अपने आप में ना एक बहुत बड़ा एक्टिविटी है. वो हमें प्लान करना पड़ेगा. हम ऐसे रातों रात नहीं बोल सकते कि ओके ओके बीआरडी तो मैंने पढ़ लिया है, मुझे तो अच्छे से समझ में आ गया, अब डेवलपर को एप्लीकेशन देने दो ना. अब डेवलपर को एप्लीकेशन देने दो, जब डेवलपर एप्लीकेशन देगा तब मैं जाके टेस्टिंग स्टार्ट कर दूंगा. सिंपल. नहीं, नहीं, टेस्टिंग तब नहीं स्टार्ट होगी. टेस्टिंग, उसके बीच में ना बहुत कुछ है, हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए. हाँ, तो हम प्लान करेंगे अपनी टेस्टिंग. हम अपनी टेस्टिंग को क्या करने वाले हैं, प्लान करने वाले हैं. प्लान करेंगे, उस फेज को हम बोलते हैं टेस्ट प्लानिंग. ठीक है. अब मैंने प्लान कर लिया. ठीक है. अब मैंने अपनी टेस्टिंग, प्लानिंग मतलब क्या हुई, प्लानिंग मतलब ये हुई कि टेस्टिंग कब स्टार्ट होगा, कितने लोग काम करने वाले हैं टेस्टिंग में, टेस्टिंग कब खत्म करेंगे, हम क्या टेस्ट करेंगे और हम क्या टेस्ट नहीं करेंगे. दैट इज कॉल्ड इन स्कोप, दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ स्कोप. इन स्कोप में क्या क्या है, व्हाट आर देयर इन द इन स्कोप मींस हमारे स्कोप में क्या क्या है. ठीक है. और हम ये भी बताएंगे सबको कि हम क्या टेस्ट नहीं करेंगे. हम जब बीआरडी पढ़ेंगे ना तो हमें समझ में आएगा कि ये चीज टेस्ट करने के लिए बीआरडी में नहीं लिखी है, तो हम उसको टेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने टेस्ट प्लान पे जरूर लिखेंगे. क्योंकि कल को मान लो वही वाली फंक्शनैलिटी नहीं चली जो हमने टेस्ट नहीं की थी, तो सबसे पहले क्वेश्चन किस पर आएगा, टेस्टिंग टीम पे. तो हम बोलेंगे कि लुक एट द टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट, वी हैव क्लियरली मेंशन्ड, हमने क्लियरली मेंशन किया है दैट दिस इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ आवर टेस्टिंग. So we are not responsible if that is not working, because that was already out of scope for our testing and that has already been agreed. हमने उसे agree भी कर लिया. ठीक है. अब टेस्ट प्लानिंग में जब बोल रही हूँ ना, तो इट्स अ बिग डॉक्यूमेंट. एक टेस्ट प्लानिंग का एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सा डॉक्यूमेंट होता है, विच इफ टाइम परमिट्स वी कैन लुक एट दैट डॉक्यूमेंट. अदरवाइज दैट विल आल्सो बी कवर्ड इन दी डिटेल्ड क्यूए क्लासेस दैट वी हैव. ठीक है. अब टेस्ट केस डेवलपमेंट क्या हुआ कि केस क्या होता है, केस इज अ काइंड ऑफ एक्टिविटी, या फिर इट्स अ काइंड ऑफ अ फीचर जो जो कि हम लिखने वाले हैं, डेवलप करने वाले हैं. मींस कि ओके, बीआरडी क्या बोलता है, बीआरडी बोलते हैं कि अगर किसी ने आईआरसीटीसी यूज करना है ना, तो वो बिना अपना लॉगिन क्रिएट किए यूज नहीं कर सकता है. तो मैं ऐसा टेस्ट केस लिखूंगी दैट क्रिएट अ यूजर लॉगिन. और उसके बाद मैं क्या लिखूंगी, टू क्रिएट अ यूजर लॉगिन, टू क्रिएट अ यूजर लॉगिन यूजर हैज टू क्रिएट हिज अकाउंट. अब मैं लॉगिन कब कर पाऊंगी, जब मेरा अकाउंट होगा. आई जस्ट कांट गो इनटू आईआरसीटीसी एंड जस्ट टाइप यूजर नेम नेहा प्रसाद और पासवर्ड मैंने जो मन किया वो डाल दिया. नहीं, पहले तो मैंने अकाउंट बनाना पड़ेगा. तो क्या क्या टेस्ट केसेस आएंगे, पहला टेस्ट केस हो गया टू क्रिएट अ यूजर अकाउंट. दूसरा टेस्ट केस आ गया टू log in, to be able to successfully log into the account. Third case आ गया if the to check if the user is able to create a new password in case he forgets the password. ठीक है, ये सब हो गया. फिर मैं अंदर चली गई. अंदर में click that user is able to book a ticket. book a ticket बहुत बहुत जेनेरिक सेंटेंस हो गया. बुक अ टिकट मतलब तो मतलब बहुत सारे पेजेस से गुजरना पड़ेगा ना, तो मैं उसको ब्रेक करूंगी. टू वेरीफाई दैट यूजर इज एबल टू सेलेक्ट अ सोर्स एंड अ डेस्टिनेशन. ठीक है. एंड देन व्हाट, टू वेरीफाई दैट यूजर इज एबल टू सी द ऑप्शंस ऑफ द ट्रेन्स अवेलेबल, है कि नहीं.
ऐसे करके ना मैं ब्रेक करते 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 बहुत सारा टेस्ट केस लिख लूंगी। मैं उस प्रोसेस को क्या बोलूंगी? टेस्ट केस डेवलपमेंट। मैं उस प्रोसेस को क्या बोलूंगी? टेस्ट केस डेवलपमेंट। ये भी डिटेल में होता है जो कि हम टूल्स में लिखते हैं। आजकल ना हमारे पास या तो जीरा टूल रहता है या एएलएम टूल, जो जिस टूल की मैं कल बात कर रही थी कि क्यूसी, इट इज अ हायर वर्जन ऑफ क्यूसी। उस टूल पे हम सारा ये सब कुछ लिखते हैं ऑटोमेटिकली। हम जाते हैं वहां लिखते हैं नंबर वन क्रिएट एन अकाउंट इन एएलएम, हो गया। क्रिएट एन अकाउंट इन आईआरसीटीसी, मैंने एएलएम पे लिख लिया। फिर मैं नंबर 2 पे गई। ऐसे ऐसे करके ना ये सब या तो हम इसको टूल्स पे लिखते हैं, या फिर अभी भी कितने कंपनीज ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं कि एक्सेल पे ही लिख लो। ठीक है, नंबर 1 एक्सेल पे तो सबने देखा होगा, जैसे 1 2 3 करके लिख सकते हैं ना आप। सीरियल नंबर डाला और उस पे डाल के लिखा 1 2 3 4 ऐसे करके आप उस पे डाले और आपने उस पे टेस्ट केसेस लिखना शुरू कर दिया। दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट केस डेवलपमेंट। अब आपका टेस्ट केस डेवलप हो गया, आपने 100 टेस्ट केसेस लिख के रेडी कर दिया है। गाइस, ये सब कुछ ना हम हमारे पास एप्लीकेशन आने के पहले ही हो जाना चाहिए। ठीक है, ये हम कैसे कर लेंगे? हमें ये बीआरडी पढ़ के, एसआरएस पढ़ के, डेवलप बिजनेस के साथ डिस्कशन करके, ये सब करके हम अपना रेडी कर लिए। अभी तक हमारे पास रियल एप्लीकेशन आया नहीं है, लेकिन हमने ये सब पहले ही रेडी कर लिया क्योंकि हमें समझ आ गया बीआरडी और एसआरएस देख के कि एक्चुअली में ये क्या करने वाला है। ठीक है, ये 3 पहले के फेजेस हो गए जब हमारे पास एप्लीकेशन आया ही नहीं है। सेटअप दी टेस्ट एनवायरनमेंट। अब मैंने याद है मैंने बोला था कि लास्ट फेज क्या होता है? डिप्लॉयमेंट। तो वो प्रोडक्शन में डिप्लॉय होता है। प्रोडक्शन में मतलब सारे लोगों के लिए। अब टेस्टिंग टीम के लिए तो उनका पास एक एक अपना एक होता है, होना चाहिए ना। जैसे मान लो आईआरसीटीसी की टीम ने कभी टेस्ट की होगी, तो वो irctc.co.in पे नहीं टेस्ट करा होगा उन लोगों ने। वो हो सकता है कि उन लोगों ने क्या यूआरएल यूज किया होगा? irctc.test.co.in। क्योंकि इंटरनल टेस्टिंग के लिए एक एक अपना एनवायरनमेंट अलग होता है और एक लाइव एनवायरनमेंट अलग होता है। उसको प्रोड एनवायरनमेंट बोलते हैं और हमारे टेस्टिंग के लिए टेस्ट एनवायरनमेंट बोलते हैं। वो एनवायरनमेंट को सेटअप करना, सेटिंग अप दी टेस्ट एनवायरनमेंट। उस एनवायरनमेंट को सेट करके टेस्ट एनवायरनमेंट रेडी होता है, जिसमें वो एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं, उसमें डेटा डालते हैं। बिना डेटा के तो हम टेस्टिंग कर ही नहीं सकते। आईआरसीटीसी के लिए कैसे डेटा हो सकते हैं कि अलग एक लॉगिन होगा, बहुत सारे अलग अलग लोगों का लॉगिन होगा, फिर अलग अलग सोर्स और डेस्टिनेशन के होंगे। न्यू दिल्ली टू कोलकाता, न्यू दिल्ली टू बॉम्बे, ठीक है, न्यू दिल्ली टू चेन्नई। ये सारा डेटा का हम उस पे क्या करेंगे? सब रेडी रखेंगे और फिर हमारा एनवायरनमेंट रेडी हो गया। अब एनवायरनमेंट रेडी हो गया, यहाँ से अब एक्चुअल टेस्टिंग स्टार्ट होता है गाइस। इस प्रोसेस से ना एक्चुअल टेस्टिंग स्टार्ट होता है। ये अब टेस्ट एग्जीक्यूशन। अब तुम किसका टेस्ट एग्जीक्यूशन करोगे? जो टेस्ट केस तुमने लिखा है लॉग इन टू क्रिएट एन अकाउंट, तो तुम रियल में जाके ना अब अकाउंट क्रिएट करोगे और देखोगे कि अकाउंट क्रिएट हो भी रहा है कि नहीं, और मेरा टेस्टिंग स्टार्ट हो गया। अब डेवलपमेंट टीम ने मुझे डिप्लॉय कर दिया वो एप्लीकेशन को टेस्ट एनवायरनमेंट पे, मुझे यूआरएल दे दिया www.irctc.test.co.in। मैंने टेस्टिंग स्टार्ट कर दी। मैंने टेस्टिंग कैसे? क्या मेरा बेस है? मेरा बेस है टेस्ट केस। ये है मेरा बेस। मैंने अपना एक तरफ टेस्ट केस खोला और मैंने दूसरी तरफ एप्लीकेशन खोला। मैंने पढ़ा मेरा टेस्ट केस क्या बोलता है कि दैट चेक इफ द यूजर इज एबल टू सेलेक्ट अ सोर्स एंड अ डेस्टिनेशन। तो मेरे पास रेडी है यहाँ ड्रॉप डाउन। मैं 4 5 ड्रॉप डाउन चेक करूंगी कि अच्छा दिल्ली और बॉम्बे के बीच का ट्रेन हो रहा है। अगर मैं दिल्ली और दिल्ली सेलेक्ट कर रही हूँ तो क्या मैसेज दे रहा है? ऐसे मैसेज देना चाहिए ना, सोर्स एंड डेस्टिनेशन कैन नॉट बी सेम। तो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं ये एक्चुअल टेस्टिंग करूंगी। ठीक है, अब मैंने टेस्टिंग कंप्लीट कर ली, मेरा पूरा का पूरा टेस्टिंग हो गया। अब मैं टेस्टिंग क्लोज करने के प्रोसेस पे हूँ, टेस्ट साइकिल क्लोजर, जहां पे मैं क्या बोलूंगी कि मैंने अपने टेस्ट केसेस 100 टेस्ट केसेस लिखे थे, सारे टेस्ट केसेस मैंने कंप्लीट कर लिए, सारे टेस्ट केसेस मैंने अच्छे से देख लिया है। और मैंने क्या किया कि टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, सबके सब अच्छा से काम कर रहा है। अब नाउ माय टेस्टिंग इज कंप्लीटेड। नाउ माय टेस्टिंग इज व्हाट? माय टेस्टिंग इज कंप्लीटेड। अब मेरी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब नाउ इट इज रेडी टू गो टू विच फेज? जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कंप्लीट होती है हम कौन से फेज में घुस जाएंगे? हम 5th फेज में घुस जाएंगे। उस फेज को हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉयमेंट फेज। जब मैंने एक ईमेल डाल दिया कि हेलो एवरीबॉडी, वी हैव टेस्टेड दिस एप्लीकेशन एंड दिस इज नाउ वर्किंग फाइन,
नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज द टेस्टिंग, और मैं फिर एक डॉक्यूमेंट बनाऊंगी। उस डॉक्यूमेंट का क्या नाम रहेगा? टेस्ट साइकिल क्लोजर डॉक्यूमेंट या फिर टेस्ट कंप्लीटेशन डॉक्यूमेंट। उस पे मैं क्या लिखूंगी कि देखो टेस्टिंग इस डेट को स्टार्ट हुई थी, टेस्टिंग इस डेट को खत्म हो गई, हमने 100 टेस्ट केसेस टेस्ट किए, हमें इतने सारे डिफेक्ट्स मिले, सारे डिफेक्ट्स फिक्स हो गए, हमने दोबारा टेस्टिंग की, मेरे पूरे टेस्टिंग का समरी। टेस्ट क्लोजर में क्या लिखेंगे? टेस्टिंग की पूरी समरी, और फिर उसके बाद टेस्टिंग खत्म और वो डिप्लॉयमेंट में चला जाएगा। ये टेस्टिंग लाइफ साइकिल। जस्ट गिव मी अ मिनट। Quickly check a few of the questions that people are asking. All right. What is a Selenium? Guys, Selenium is an automation testing. Selenium with Java. Selenium is a tool. Selenium is a tool that is used for an automation testing, जहां पर आप testing को automate कर सकते हैं. Using Selenium can be used. Selenium is a tool that can be used with coding languages such as Java and Python. ठीक है? What is the entry and exit criteria, ma'am? So entry and exit criteria is mentioned in the testing. Entry criteria का मतलब होता है कि आप टेस्टिंग कब शुरू करेंगे, एग्जिट क्राइटेरिया का मतलब होता है कि आप टेस्टिंग कब खत्म करेंगे। जैसे कि अब मुझे एक बात बताओ, मेरी टेस्टिंग में एंटर करने का क्या क्राइटेरिया है? कि मेरे पास एक बीआरटी होना चाहिए अच्छे से, मेरा एनवायरनमेंट सेटअप होना चाहिए। अगर डेवलपमेंट टीम बोलेगी कि हमारे पास तुमको देने के लिए है ही नहीं कुछ, irctc test.co.in है ही नहीं, तो मैं किस पे टेस्टिंग करूंगी? तो मेरे लिए वो एंट्री क्राइटेरिया अगर मीट नहीं होता है तो मैं क्लियरली अपने टेस्ट प्लान में लिखूंगी दैट इफ दिस ऑल क्राइटेरिया इज नॉट मेट, वी कैन नॉट एंटर इनटू टेस्टिंग। दैट इज कॉल्ड द एंट्री क्राइटेरिया। और ये वाला एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया किस डॉक्यूमेंट में जाएगा? एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया गाइस टेस्ट प्लान में जाएगा। और एग्जिट मतलब कि कौन से फेज में मैं ये बोलूंगी कि मेरी टेस्टिंग खत्म हो गई। मैं इस फेज में बोलूंगी कि मैंने 100 टेस्ट केसेस लिखे थे, 100 के 100 पास हो गए, कुछ भी फेल नहीं हुआ है, जैसा काम करना चाहिए था सब कुछ वैसा काम कर रहा है। तो तो मैं ये बोल सकती हूँ। और भी जो जो क्राइटेरिया रहेंगे आपके पास उस एप्लीकेशन को लेके वो सब आप मेंशन करेंगे। किस में मेंशन करेंगे? टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट में। और उसको हम क्या बोलेंगे? एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया, राइट? Who do the planning and close? So the test there is a test lead, there is a test manager who will do the planning and who will do the closure. ठीक है? Test closure is a graphical form or report. It can be both. ठीक है? आप उसको ग्राफ में भी बना सकते हैं कि आप उसमें ऐसे ऐसे ग्राफ्स जैसे होते हैं कि 10 टेस्ट केस मैंने लिखे थे, उसमें से 5 पास हुए थे, 10 फेल हुए थे, फिर मैंने री एग्जीक्यूट किया। ये सब कुछ लिख सकते हैं। आप कितने डिफेक्ट्स रेज किए थे, आप उसको ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप उसको नॉर्मल नंबर में भी लिख सकते हैं, टेबल में भी लिख सकते हैं। ठीक है? सो इट डिपेंड्स कि आपका ऑर्गेनाइजेशन, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में है वो कौन सा टेम्पलेट फॉलो करता है। मतलब वो ग्राफिकल एंटरटेन कर एनकरेज करता है या वो एक नॉर्मल टेबल एनकरेज करता है। सो दैट इज ऑल, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि वो ग्राफ में है कि टेबल में। इम्पोर्टेंट इज यू पुट द राइट डेटा। ठीक है? यू पुट द राइट इंफॉर्मेशन। ऑल राइट। यस। सो लेट मी, so I'm just reading the questions. Okay. What else people are asking? Ma'am, what is ISTQB? Okay, so guys, ISTQB is an international testing certificate.
that you have to, if you do it, that will add value to your career, and that will add value to yourself, and that will help you in getting the job. So like I said, guys, like I said in my yesterday class, so we have a 1 month class which talks about the software testing in detail, wherein you will have all that live accesses to application and all that. So I'm just typing it all, what is there, in case if you want to hear, somebody has asked this question, so I'm answering to it. Software, yes, that's right. Software testing is there, plus ISTQB certification clearance is there. All right, certification, plus agile, plus SQL, plus ALM and Jira. Okay, so that will be covered into all this. All right, so there is a software class which is a 1 month class that we take, and we cover the preparation of ISTQB certification also, जिसमें हमारे पास somewhere around ISTQB के 12 chapters होते हैं अलग से, जो जो हम prepare करते हैं, and then there is somewhere around 1,000 questions. These are multiple choices questions that comes, and then you have to clear somewhere around 60 percent to get that certification cleared. So we do help that in clear. So that is the whole package that I've just mentioned. People, if the guy who asked about the ISTQB. Okay. All right. What? Oh, okay, someone asked me what is the difference between SDLC and SDLC. So SDLC, software development, it talks about the entire flow. आप यहाँ देखिए, analysis, design, development, testing, deployment and maintenance, ये पूरा का पूरा SDLC है, और SDLC ये है, देखिए, जिसमें एक पर्टिकुलर फेज के, इस वाले फेज का खुद का लाइफ साइकिल है, वो डिफरेंस है, ठीक है. एंड दिस गाइस, this document, which is this PPT, is there in the store, जहाँ पे आप clearly ये देखिए. मेरा next question यही था, आपने मेरा next question ही पूछ लिया, difference between SDLC and STLC. So I was going to come to this slide, जहाँ पे मैं ये बताने वाली थी कि SDLC और SDLC versus STLC. So this is what I had prepared. So it was in the next slide, and you can just go into the store and look at the difference. Okay. Yes, I'm going to send the store link, guys. I'm going to send the store link tomorrow, or maybe today late evening in the WhatsApp. ठीक है? See, current market for the QA. There is always a good market for QA for the good candidates. Okay, let me just tell you, guys, everybody who are there in the class, I don't want to tell you any false things कि नहीं आप आपको तुरंत जॉब मिल जाएगा. सी, जॉब उसको ही मिलेगा जो अपने फील्ड में या फिर जिसने तैयारी अच्छी करी हुई है. इट इज सिंपल ना, आप सब स्कूल से पढ़ते हुए आए हैं. Everybody has gone into school, everybody has gone into the colleges. Guys, the fundamental has never changed. आपको पता है ना कि आप आज थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके याद करने की कोशिश करिए, जो ज्यादा मेहनत करता था क्लास में वही फर्स्ट आता था, वही सेकंड थर्ड आता था. तो फंडामेंटल हैज नेवर चेंज्ड. यू पुट योर हार्ड वर्क, आप मेहनत करिए, आप अच्छे क्लासेस लगाइए, आप अच्छे मेंटोर से ट्रेनिंग लीजिए, आप क्वेश्चंस पूछिए, एंड देन यू सी इफ यू डोंट गेट अ जॉब. ठीक है, देन देयर इज 100% chances, 100% chances that you're going to get a job. First, try to give your 100% and then see if you're not getting a job. People आते हैं मेरे से पूछते हैं, 2 दिन क्लास का होता है, मैम जॉब नहीं मिल रहा है. What have you tried? Do you know, have you cleared ISTQB? No. Do you know what agile is? No. Then why will the companies hire you? आप खुद बताइए मुझे. आपको फिर क्यों कंपनीज लेगी ना, हमें क्यों. आईटी इज अ वेरी हाईली पेड इंडस्ट्री.
अगर आपको पता होगा, मुझे लगता है बहुत लोगों को पता होगा, एंड आईटी इज अ हाईली पेड इंडस्ट्री, सो इफ यू वांट टू गेट दैट हायर अमाउंट, देन यू नीड टू पुट दैट एक्स्ट्रा एफर्ट्स, है कि नहीं? एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट। सबसे अच्छी बात यह है कि वो डिफिकल्ट है ही नहीं। इट्स नॉट डिफिकल्ट, यू ओनली हैव टू स्पेंड 2-3 आवर्स जेन्युइनली, अच्छे से तैयारी करिए, क्वेश्चंस पूछिए, थोड़े से अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करिए, एंड देन आई कैन गारंटी यू दैट यू आर गोइंग टू गेट अ जॉब. So the guy who asked me that how is the market is very good. I only have one line to say, market is always good for the good people. ठीक है? ठीक है? Yes, yes, Rushikesh. For freshers also the market is very good. Very good. नॉन आईटी बैकग्राउंड, आप जो थे वो थे, आपने जो कर लिया आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं. कैन यू? You can't change, but then you can work on the coming things. आप इस पे फोकस करिए, आप इस पे इसको पढ़ के समझिए, then you are going to get the job. What interviewer is going to see कि okay, what the candidate has done. Candidate has done a testing course, उसके पास एक सर्टिफिकेशन है, उसने ISTQ भी क्लियर कर ली, उसको SQL आता है, उसको बहुत सारे टूल्स आता है, उसने मैंने जितने टेस्टिंग के क्वेश्चंस पूछे उसने सारे टेस्टिंग के क्वेश्चंस आंसर्स कर दिए, then he is the right candidate. So the guys who are from the non-IT background are also very much eligible to get a job. Okay? If any error is found in deployment, then how to handle? You need to identify what is the error. हमारे पास एक deployment team है कि वो जो पैकेज है, एक पैकेज डिप्लॉय होता है, पैकेज में कोई फाइल मिसिंग है, तभी वो डिप्लॉय नहीं हो पा रहा है प्रोडक्शन में. ठीक है? So then there is a team who looks into what is the error and then they try to handle it. Deployment errors are not a part of the testing people. Testing people are not responsible if there is an error in the deployment. डिप्लॉयमेंट टीम है, वो देखेगी कि क्या एरर था और वो रिजॉल्व करेगी और वो प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करेगी. हमने एक बार अपना टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट दे दिया, देन वी आर नॉट गोइंग टू लुक एट व्हाट इज द डिप्लॉयमेंट एरर. ठीक है? All right, so like I said that I knew we, because I teach in so much detail, I don't want to just go up and upar ka knowledge deke. I do not believe in that. So we are going to cover this part, which is the types of software testing. ये बड़ा module है और एक important module है. So this, can you see this type of software testing, manual automation, और ये सारा हम पढ़ने वाले हैं. So we are going to have the class tomorrow, and we are going to cover this types of software testing because it's a big one and an important one. और उसमें हमारे पास एक word document भी है डिटेल में, जो कि हम इसको यूज करने वाले हैं अपने कल के क्लास में. ठीक है everybody? So I'm there for 2 more minutes, and I'm happy to answer questions of everybody if you have anything. Timing will mostly be the same, I think so. If there is a change, we will let you know with WhatsApp. Please regularly check your WhatsApp. This WhatsApp group has to be your most important group. ठीक है? क्योंकि ये WhatsApp group आपको आपको learnings देने वाला है. That's going to build your career. So keep checking your WhatsApp group rather than just looking कि मैसेज आया है और इग्नोर नहीं करिए, करना है आपने. आपने उसको क्लिक करना और अपडेट्स देखना है. ठीक है? Ma'am, what is the duration of your entire package course one, which is the software testing STQB Jira? Okay, so the duration for that is somewhere around 25 days, 1 hour each. But then it depends on the candidates. If the candidate is okay in 25 days, we wrap up in 25 days. If the candidates want 5 more days, 6 more days, and then we just help it out. The objective is to get the candidates ready to apply in the market after that course.
I hope you guys are understanding it. What I'm trying to say, apart from the syllabus जो हम cover कर रहे हैं, बाकी की चीजें भी जो मैं बोल रही हूँ कि आपने ये करना है, आपको वो भी समझ में आ रहा है और आपको वो भी seriously लेना है. ठीक है? This is the start of 2023. I want many of you, almost all of you, to get the job. Uh, get the job in this 2023. Okay. Okay, so I'm going to paste the store link by tomorrow, guys, and just check that store. And if you have any questions accessing in that, let me know. Okay. Uh, all right, guys. I would just want to thank you everybody to have an interactive session. And I'm sending Rushabh. I'm going to send the store link. Don't worry. Okay. So have a nice Sunday. Take rest, but do not forget to study. Spend some 1 hour into your career thing to upgrade yourself, to learn something, and come up with questions tomorrow. And I'll be happy to answer. All right. So have a nice rest of the day, everybody. Bye bye. See you tomorrow.